Hello everyone. Today we are going to start class 10th maths chapter 6 triangles exercise 6.4. So this exercise is related to the theorem area of similar triangle that we have done in previous section. Now today we are going to start exercise question. Question number 1 statement is given to us. Let triangle ABC is similar to triangle DEF and their areas are given to us 64 and 121 centimeter square. And also one side is given of one triangle EF. If EF is given to us 15.4 centimeter, then find BC. BC we have to find here. So here we have given this one BC we have to find. So यहाँ पे हमें ये गिवन है कि ट्राइंगल के एरियाज हैं, तो इससे हमें पता चल गया कि हमने थ्योरम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स अप्लाई करनी है. तो हमने गिवन लिखा सबसे पहले सॉल्यूशन में कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी एफ एंड वी हैव टू फाइंड बी सी and we have given EF is 15.4. So first of all we have applied the theorem. We know that if triangles are similar, then by this theorem area ratio of areas of two similar triangle is equal to ratio square of ratio of their sides, corresponding sides. So here triangle ABC and triangle DEF areas ratio is equal to AB upon DE, first two letter of AB and first two letter of DE. Then BC upon EF and CA upon DF or FD, you can write anyone. So BC upon EF हम चूज करेंगे इसके इक्वल. ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें EF गिवन है. So we have taken all the values. Area of ABC 64, DEF is 121, BC upon 15.4 स्क्वायर. सो स्क्वायर को उस साइड ले गए हैं, वो स्क्वायर रूट बन गया. 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और 121 का स्क्वायर रूट है 11. सो यहाँ पे स्क्वायर तो चला गया, अब मेरे को फाइंड करना है बी सी. सो नाउ वी विल टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. For cross multiplication we have applied here this one, that 15.4, this one cross multiplication 15.4 into 11 into BC and this by calculating this one ये 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11 and this is 1.4 we have. This is 1.4. So 1.4 into 8 is 11.2 centimeter. This is the answer. BC is 11.2 centimeter. Now next question we have, this is related to trapezium. We have given in question number 2, diagonals of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O, and we have also given if AB is twice of CD, then find the ratio of areas of triangle AOB and COD. We have to find the ratios of triangles AOB and COD. इनके एरियाज का हमने रेशियो फाइंड करना है. सो सबसे पहले हमें ये गिवन है कि ट्राइंगल का हमें ट्रेपीजियम गिवन है ए बी सी डी. तो हमने वो डायग्राम हमने बना लिया है यहाँ पे ऑलरेडी. ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम where we have given AB is parallel to CD, intersecting its diagonals are intersecting at point O, and we have given AB is twice of CD. ये हम use करेंगे solution में. We have to find the areas of ratio AOB and COD. जहाँ भी areas of triangle की बात आएगी तो वहाँ आपको area of similar triangle apply करना है theorem, और प्लस आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हों. तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं. तो अब हम सबसे पहला काम यही करेंगे, हम पहले इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे. ए ओ बी एंड सी ओ डी, हमें ये तो गिवन है कि ये लाइंस पैरेलल हैं. अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. तो वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं इसमें. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, COD में एंगल 1 है विच इज इक्वल टू एंगल 2 एंड
इन ट्राइंगल दिस वन COD में एंगल 3 दैट इज इक्वल टू इन ट्राइंगल AOB 4, एंगल 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। रीजन आप ये लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वाई बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। So by angle similarity criteria we have AOB is similar to COD. So अगर ट्राइंगल सिमिलर है अब हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय द थ्योरम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वी हैव एरिया ऑफ रेशियो ऑफ AOB अपॉन COD, वही हमने फाइंड करना था। AB अपॉन CD स्क्वायर, OB अपॉन OD स्क्वायर, OA अपॉन OC स्क्वायर। तो अब आपको लिखना आ गया होगा कि थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो कैसे हमने अप्लाई करनी है। पहले हम फर्स्ट टू रेशियो ले लेंगे, AO अपॉन OC, देन सेकेंड एंड थर्ड OB अपॉन OD, देन फर्स्ट एंड लास्ट AB अपॉन CD। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में AB की वैल्यू दी हुई है ट्वाइस ऑफ CD, वो हम एक ही रेशियो लेके यहाँ फिल कर रहे हैं। AB की जगह पे मैंने रख दिया है ट्वाइस ऑफ CD। तो CD और CD तो कट जाएंगे, तो सिर्फ रह गया हमारे पास 2, वी हैव लेफ्ट ओनली 2, दिस इज 2 स्क्वायर अपॉन 1। 2 square upon 1 means 2 square is 4, 4 by 1. So ratio is 4:1. This is the answer of question number 2. Next we have question number 3rd. In the following figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, then show that ratio of area of ABC and area of DBC is AO upon DO. This is given to us. So in this question we have given ABC and DBC are two triangle with same base BC. Diagram is already given to you in your book. एंड वी हैव गिवन AD इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट O। तो सबसे पहले हमने गिवन लिखा है वो हम क्वेश्चन में से ही लिख लेंगे गाइज, और अब हमने टू प्रूफ भी क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्ट करना है जस्ट, और फिर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट करना है। कंस्ट्रक्शन पार्ट क्यों कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों कर रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में। क्योंकि हमें ABC और DBC जो दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर नहीं दी हुई। सेकेंड केस इज देयर, सेकेंड कंडीशन कंस्ट्रक्शन की क्या है कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये ट्रेपीजियम लग रहा है आपको शक्ल से, बट यहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई हैं। सो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब आपने क्या करना है, अब हम सबसे पहले इस ट्राइंगल में एक दो हाइट्स ले लेंगे, मींस दो परपेंडिकुलर ले लेंगे। सो इन कंस्ट्रक्शन वी विल टेक ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स AM एंड DN ऑन लाइन BC। BC के ऊपर हमने ये दो परपेंडिकुलर्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने परपेंडिकुलर्स अप्लाई किए तो यहाँ पे अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। फर्स्ट इज AOM वेयर दिस इज 90 डिग्री एंगल M, एंड सेकंड इज DON वेयर एंगल N इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। सो इन ट्राइंगल AOM ट्राइंगल DON, AOM इज वर्टिकली opposite equal to DON, this is vertically opposite angle, and AMO and DNO is 90 degree. So by angle similarity we have triangle AOM is similar to triangle DON. So we have taken here sides ratio कि all sides are equal, AO upon DO, OM upon ON and AM upon DN। हमने सारी साइड्स का रेशियो इक्वल ले लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो प्रूव करना था हमने वो रेशियो लिया हमने एरिया ऑफ ABC। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इज BC ऑफ बोथ ट्राइंगल सेम बेस, हाइट इज AM एंड DN। तो AM अपॉन DN मिल गया हमें, यहाँ पे हाफ से हाफ कट जाएगा एंड BC से BC कट जाएगा सेम बेस। तो यहाँ पे AM अपॉन DN मिल गया, और वो साइड्स की रेशियो के अकॉर्डिंग AM अपॉन DN इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू AO अपॉन DO। सो दिस इज द प्रूफ।
इजीली प्रूफ हो गया हमारे पास। हमने सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जब भी एरिया का कंसेप्ट आएगा तो हमने सिमिलैरिटी से या तो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है या फिर सिमिलैरिटी से हमने वो थ्योरम अप्लाई करनी है। So this was different question. So area of ABC upon DBC is AO upon DO. This is hence proved. Now next we have given question number 4, very easy. If the areas of two triangles, similar triangles are equal, prove that they are congruent. अगर दो ट्राइंगल्स के एरियाज सिमिलर हैं, सॉरी, इफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ वी हैव गिवन areas of two triangles are equal and similar, triangles are also similar, then prove that these triangles are congruent. congruency के लिए हमें या तो प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल्स इक्वल हैं या फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि साइड्स इक्वल हैं. सो वी हैव टेकन हियर, let us assume two similar triangles as triangle ABC similar to triangle DEF. We have given area of, here we have given area of ABC is equal to area of DEF. So if triangles are similar, we are applying here that theorem. A ratio of ABC upon DEF is AB upon DE square, BC upon EF square and CA upon DF square. So here एरियाज आर इक्वल, तो अगर एरिया इक्वल हैं तो ए बी सी की जगह डी ई एफ की जगह ए बी सी रख दिया है हमने यहाँ पे, तो ये कटिंग करके हमारे पास 1 आ जाएगा. तो 1 इज इक्वल टू ऑल दी साइड्स स्क्वायर. सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया कि ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, इसी तरह सी ए डी एफ के इक्वल है. सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle ABC is congruent to triangle DEF. So this was the question number 4. Now we are going to start question number 5. In question number 5 we have given DEF are the midpoints of AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the area of ABC and triangle DEF. यहाँ पे हमें triangles, दो triangle दी हुई हैं. One is ABC. Inside ABC we have DEF. We have given DE and F are the midpoints of triangle ABC. Means इनकी sides के midpoints हैं. तो हमने 9th स्टैंडर्ड में मिड पॉइंट थ्योरम कर रखी है. अगर आपको याद नहीं है तो हम रिकॉल कर लेते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of two sides of a triangle is that will bisect the third side, means that is equal to the half of third side, and also we will have there that side DF, like D and F are the midpoints, DF will be parallel to BC. ये हमारे पास दो कंडीशन आती थी बाय मिड पॉइंट थ्योरम. 9th स्टैंडर्ड में हमने किया था, हमने रिकॉल कर लिया यहाँ पे. अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. D and E are the midpoints of triangle ABC. D E is parallel to AC. ये जो लाइन है DE ये AC के पैरेलल है, और DE क्या आ गया हमारे पास, हाफ ऑफ AC. सो इन ट्राइंगल BED, ये वाली ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ट्राइंगल दिस वन ट्राइंगल वी आर गोइंग टू टेक BED. BED इज इक्वल टू BC एंड इन ट्राइंगल BCA बिगर ट्राइंगल्स ले ली हमने. यहाँ पे ये वाला एंगल 1 हो गया, दिस इज एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. Why? Because lines are parallel, so they are performing here corresponding angles. Similarly, angle 3 is equal to angle 4. So here by angle similarity we have both triangles are similar. फिर हमने यहाँ पे रेशियो ले लिया. सो ट्राइंगल BED इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ BCA. मीन्स जो ये एक पार्ट है ट्राइंगल का वो 1/4 पार्ट है बड़ी ट्राइंगल का. इसी तरह ही हमने बाकियों का भी बोल दिया कि ये वाला भी 1/4 हो गया, DEF भी 1/4 हो गया, ADF भी 1/4 हो गया. तो इस तरह हमारे पास हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ DEF विद ट्राइंगल ABC.
तो हमने यहाँ पे डी ई एफ का एरिया फाइंड करेंगे। गाइज डी ई एफ का एरिया कैसे आएगा, अगर हम पूरी ट्राइंगल में से ये तीनों ट्राइंगल माइनस कर देंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी में से मैंने ये तीनों ट्राइंगल हटा दी, हटाने से हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ डी एफ इज 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो भी मिल गया है, डी ई एफ इज with the ratio of ABC we have 1/4. So this is the answer of this. Next we have question number 6. Prove that the ratio of areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. So यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, कि दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन ऑल्सो, वो मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल भी होता है। तो हम यहाँ दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर, वेयर ए डी एंड पी एस आर द मीडियंस। सो हमें यहाँ पे ये गिवन है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स रेशियो आर इक्वल। we have given sides we have given here sides are proportional, so in sides का हमने रेशियो ले लिया है। इसी तरह ही अगर ये मीडियंस हैं तो D एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड QR। तो हमने यहाँ पे BC और QR का मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, वो है D और S। तो हमने हाफ ऑफ BD ले लिया, हाफ ऑफ BD इज यू कैन नो, यहाँ पे हाफ नहीं आएगा, यहाँ पे ट्वाइस आएगा, ट्वाइस ऑफ बी डी। वी विल टेक हेयर ट्वाइस ऑफ बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू एस। So twice of BD is equal to twice of QS. Why? Because BD का twice ही BC बनेगा और QS का twice QR बनेगा। तो हमने वो लिया है, यहाँ पे 2 से 2 कट हो जाएगा। So AB अपॉन PQ and BD अपॉन QS and AC अपॉन PR। सो ये रेशियो हमारे पास इक्वल हो गए हैं। तो इसी तरह ही हम यहाँ पे स्मॉल ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ABD एंड PQS। सो इसमें दो रेशियो ले लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी डी अपॉन क्यू एस। एंड ऑल्सो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बाय SAS सिमिलैरिटी रूल वी हैव ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशियो भी उसके इक्वल, स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो हमने यहाँ थ्योरम अप्लाई की है, बाय द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू एस इज इक्वल टू फर्स्ट टू रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी डी अपॉन क्यू एस स्क्वायर एंड ए डी अपॉन पी एस स्क्वायर। सो ए डी और पी एस क्या थे, ये मीडियन थे हमारे पास इस ट्राइंगल के। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ आ गया कि हमारे पास यहाँ पे प्रूफ आ रहा है ये कि सिमिलर ट्राइंगल्स का जो रेशियो, एरिया का रेशियो होता है वो उसके मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू half the area of equilateral triangle describe on one of its diagonal। सो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका डायग्राम भी नहीं दिया हुआ बुक में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। सो प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने एक स्क्वायर लिया ABC और उसकी हमने एक साइड के साथ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दी। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास ये बन गई है ABE, this one is the equilateral triangle and this is this square का जो हम हाफ लेंगे वो कौन सी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है जो कि इस डायगोनल के साथ बनी है। स्क्वायर का हमने ये डायगोनल लिया, इसके साथ हमने जो ट्राइंगल बनाई है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया
इस ट्राइंगल का ट्वाइस होगा, ठीक है, या बड़ी वाली ट्राइंगल का स्मॉल वाली ट्राइंगल से हाफ होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने लिया कि मान लो कि ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी साइड हमारे पास है ए, तो ए ई भी ए हो गया, एंड ए बी इज ऑल्सो ए, एंड बी ई इज ऑल्सो ए गिवन टू अस। एंड सिमिलरली हमने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव किया कि जो डायगोनल है वो है √2a। दिस इज √2a। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा √2a। तो ये भी सेम इसी की तरह ये साइड्स इसके इक्वल हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर सकते हैं हम कि ए बी ई और डी बी एफ आर सिमिलर ट्राइंगल्स, बिकॉज ऑल एंगल्स आर सेम, तो ये सिमिलर होगी। तो हमने इनकी सिमिलैरिटी का रेशियो ले लिया है, हमने साइड्स का रेशियो लिया। एरिया ऑफ ए बी अपॉन डी बी एफ इज इक्वल टू ए, एक साइड ए है और दूसरी है √2a, ठीक है। तो ए से ए कट जाएगा हमारे पास, √2 का स्क्वायर 2 होता है। सो दिस इज द प्रूफ कि एरिया ऑफ ए बी इज हाफ ऑफ डी बी एफ। सो दिस इज द proof of question number 7. Next we have question number 8. This is MCQ type. ABC and BD are two equilateral triangles. D is the midpoint of BC. D BC का midpoint है. Ratio of the area of triangle ABC and BDE is what? We have to find here what is the ratio of ABC and BDE. तो सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बिकॉज ABC is similar to BDE as by angle similarity rule. यहाँ पे D मिड पॉइंट है BC का, it means we have here BD is twice of you will get here BD is half of BC, ठीक है। तो यहीं से हम रेशियो ले लेंगे, BD अपॉन BC क्या आ जाएगा 1/2, BD अपॉन BC वी हैव 1/2। सो हमसे रेशियो पूछा है ABC और BDE का। तो अगर हम साइड्स देखें तो BC ऊपर आएगा और BD नीचे आएगा, तो इनका उल्टा कर देते हैं हम 2/1। तो 2/1 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4/1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next we have question number 9. Sides of two similar triangles are in ratio 4:9. 4:9 हमें साइड्स का हमें रेशियो दिया हुआ है सिमिलर ट्राइंगल का। हमने फाइंड करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स इन द रेशियो। तो एरिया क्या होगा रेशियो में, एरिया उसी का ही स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 9 स्क्वायर इज 81। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। So option number D is the correct, and in question number 8 option number C. So this was the exercise 6.4. Thank you very much.